Hello everyone, I am Kirpal Singh, PGD Computer Science, KB Pangana. Today we will start a new topic of class 12th Computer Science, recursion. What are the learning outcomes? Recursion को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आ जाएगा जो हमें पहले नहीं पता था. Understanding recursion and its types. Condition for recursion. Some programs we will do, recursive programs like sum of first n natural numbers, factorial, Fibonacci series. To calculate the GCD of two numbers, GCD is greatest common divisor of two numbers, binary search, and in the last, recursion versus iteration. So let us introduce the topic. Recursion refers to a programming technique in which a function calls itself either directly or indirectly. Recursion एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कोई भी फंक्शन उसको खुद ही इस फंक्शन को बुलाता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. A physical world example would be to place two parallel मिरर्स फेसिंग ईच अदर. अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है, सपोज वी हैव टू पैरेलल मिरर्स, दो पैरेलल मिरर्स एक दूसरे की तरफ फेस करके किए हुए हैं. एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम, अब उनके बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड रिकर्सिवली. इसकी इमेज दूसरे में बनेगी, दूसरे की इमेज पहले में बनेगी. सो दिस इज द रिकर्शन व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. Let us study advantages of recursion. Recursive function makes the code look clean. A complex task can be broken down into a simpler sub-programs using recursion. बड़ी से बड़ी problems को हम recursions के through solve कर सकते हैं. Sequence generation is easier with recursion than using some nested iteration. अगर आपको कोई sequence generate करने हैं like Fibonacci series और बड़े कोई दूसरे सीक्वेंस में अगर आप जनरेट करने हैं तो रिकर्शन के थ्रू ये बड़े ही आसानी से किए जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू लूप्स. नाउ व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? अ फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ. अगर कोई फंक्शन खुद को ही बुलाता है, खुद को कॉल करता है, तो वो फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है. फंक्शन दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट, डायरेक्ट रिकर्शन. If a function calls itself directly from its function body, अगर कोई फंक्शन खुद से ही उसको कॉल करता है, अपनी फंक्शन बॉडी के अंदर से ही कॉल करता है, तो वो डायरेक्ट फंक्शन है. Let us see an example. Suppose we have defined a function a and inside its body we have another function, same function a. We can see that a is calling itself. ए जो है वो खुद के ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है लाइक अ लूप. इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन. यहाँ फंक्शन के बाद आपको एक सेमीकोलन प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कॉलन प्लेस होगा. सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट रिकर्शन. इफ अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन विच कॉल्स इट्स कॉलर फंक्शन. अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वो फंक्शन उसको बुलाने वाले फंक्शन को कॉल करेगा, वो एक इनडायरेक्ट फंक्शन होगा. लेट अस सी, वी हैव टू फंक्शंस, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. नाउ वी कैन सी हियर फंक्शन 1 इज कॉलिंग द फंक्शन 2 एंड इन रिटर्न फंक्शन 2 इज आल्सो कॉलिंग फंक्शन 1. सो दिस इज अ इनडायरेक्ट कॉल ऑफ अ फंक्शन. सपोज वी हैव अ फंक्शन a and inside a, the body of a, we have another function b, and we define another function b, and inside the body of b we have a. So what we can say here, b is calling a and a is calling again itself. So these types of functions are indirect function. Let us see some another examples. Function 1 is calling function 2, function 2 is calling function 3, and so on up to the function n, and function n is calling again the function 1. So this type of
recursion is indirect type of recursion. Let us see another example. A is calling B, B is calling B, and C, D, and A again is calling itself. So these types of functions are indirect recursive functions. So there must be conditions for recursion. What are that? Let's see. It must contain base case condition, that is where to stop, otherwise it will become infinite. किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन का होना बड़ा ही जरूरी है. क्यों जरूरी है? अगर आपने फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और उसे पता ही नहीं है तो कहाँ रुकना है, तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा. सो वी मस्ट हैव अ कंडीशन so that it knows where to stop. So this condition is known as a base condition. Base condition is given using if to specify the termination condition. तो base condition कैसे देंगे? With the help of if. हम एक termination condition बताएंगे और वहाँ पे हमारा फंक्शन terminate कर जाएगा. अब आपका फंक्शन जब टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद वो एक रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा. रिकर्शन एग्जीक्यूट्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग द स्टैक. तो फंक्शंस की जैसे ही टर्मिनेट होगा उसके बाद वो एक रिवर्स ऑर्डर में स्टैक की तरह एग्जीक्यूट होगा. इट फर्स्ट डिवाइड द लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, देन स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये क्या करेगा? सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेगा और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसका सॉल्यूशन ये देगा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट करेगा. इट टेक्स मोर मेमोरी एज कंपेयर टू लूप स्टेटमेंट बिकॉज विद एवरी रिकर्सिव कॉल मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड फॉर लोकल वेरिएबल्स. अब आपका ये रिकर्सिव फंक्शन जो है वो लूप स्टेटमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा लोकल वेरिएबल्स को एलोकेट करना है. हर एक कंडीशन के लिए, हर एक कॉल के लिए अलग अलग लोकल वेरिएबल्स ये देगा. इफ रिकर्शन इज इनफाइनाइट, एंटायर मेमोरी विल बी यूज्ड अप एंड पाइथन विल रिपोर्ट रन टाइम एरर फॉर इट. अगर आपका रिकर्शन में आपने बेस कंडीशन नहीं दिया और वो एक इनफाइनाइट लूप बन गया, तो आपके कंप्यूटर की सारी मेमोरी जो है वो यूज हो जाएगी और पाइथन आपको एक रन टाइम एरर देगा इसके लिए. तो ये फायदा कहाँ है रिकर्शन का? इट इज यूजफुल फॉर कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम्स लाइक ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा. जो बड़ी बड़ी डाटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, वो रिकर्शन के थ्रू इजिली हमारी सॉल्व हो सकती है. Let us see a recursive program to print a message forever. यानी आपका मैसेज जो है वो चलता ही जाएगा. Let us define a function def message. तो फंक्शन का नाम यहाँ पर है मैसेज, प्रिंट के मंगाना. देन उसी नाम के फंक्शन को दोबारा से हम इसके ब्लॉक के अंदर कॉल कर रहे हैं मैसेज. What we can see here is a message function is calling itself again. So this is a direct type of a recursion. Next, let us give a call to this function. तो जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे क्या होगा? यहाँ पे ये प्रिंट करेगा KB मंगाना, और फिर उसके बाद फिर से ये कॉल जाएगा, फिर KB मंगाना प्रिंट करेगा, फिर से कॉल जाएगा, फिर KB मंगाना प्रिंट करेगा. तो होगा क्या? ये बार बार मैसेज चलता ही जाएगा, यानी दिस मैसेज विल रिपीट फॉरएवर. अब ये ऐसा क्यों हुआ? इन दिस कोड बेस कंडीशन इज मिसिंग. अब हमने बेस कंडीशन नहीं दी, बट इस बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन जो इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करती, लेकिन कंडीशन तो दी नहीं है, उसकी वजह से ही प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा. इज मिसिंग. सो मैसेज फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल आउट ऑफ मेमोरी एरर. तो जब तक मेमोरी सिस्टम की है तब तक ये फंक्शन चलेगा, और लास्ट भैया ये बोलेगा रन टाइम एरर, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड. अब इसकी भी लिमिट है, जब तक इसकी मेमोरी है तब तक चल रहा है, अदरवाइज लास्ट में आपके पास एक एरर आएगा, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड. तो भाई बेस केस का कंडीशन देना बहुत ही जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी अनदर प्रोग्राम. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स थ्रू रिकर्शन. डिफाइंड कंप्यूट नम.
हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है लिमिट नम, इफ नम डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 1। अब हमें पता है यह जब नम की वैल्यू 1 होगी हमारा रिजल्ट प्री नोन है, हमें पहले से पता है विदाउट एनी रिकर्सिव कॉल। वह इसके लिए हमें रिकर्शन नहीं लगानी। अगर नंबर हमारा 1 है तो हमें पता है कि हमारा सम भी क्या होगा 1 होगा। सो दिस इज द बेस केस। एल्स नहीं तो क्या करना है हमें, रिटर्न नम प्लस कंप्यूट ऑफ नम माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिकर्सिव कंडीशन बना रहे हैं। रिकर्सिव कंडीशन में देखेंगे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट नम प्लस कंप्यूट ऑफ नम माइनस 1। तो बार बार हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती जाएगी और लास्ट में जाके स्टॉप कहाँ पे होगी, जब नम हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेन पार्ट में आते हैं। लास्ट इज इक्वल टू 4, रिजल्ट इज इक्वल टू कंप्यूट ऑफ लास्ट। तो इनिशियल कॉल दे रहे हैं हम इस फंक्शन को, कंप्यूट फंक्शन को हम चला रहे हैं, तो लास्ट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये कॉल कैसे होगा, कंप्यूट ऑफ 4। सो व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कंप्यूट इज 4। तो अगली बार जब चलेगा आप देखेंगे यहाँ पे इफ नम डबल इक्वल टू 1, यहाँ पे 4 डबल इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स में गया। व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल गिव अस नम यानी कि 4 प्लस कंप्यूट ऑफ 4 माइनस 3। यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा 4 प्लस नम माइनस 1 दैट इज 3 और फिर से ये कॉल करेगा यानी कि कंप्यूट ऑफ 3। कंप्यूट ऑफ 3 में यहाँ देखेगा ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे आया, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 प्लस 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट फिर से कंडीशन कॉल हुई 2 के अकॉर्डिंग, अब ये 2 इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स है, यहाँ जाएगा, इसके क्या करेगा यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 1 कंडीशन आ गई 0। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट के केस में इसकी बेस केस कंडीशन नम के लिए जब वैल्यू 1 थी तो कंडीशन रीच हो चुकी है, रिटर्न 1 करेगा। और अब जब ये एग्जीक्यूट होगा ये रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज द 10 और वो कहाँ स्टोर होगा, जाके रिजल्ट में जाके स्टोर हो गया। अब इसके बाद ये नीचे आएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यहाँ हमने दिया है प्रिंट द सम ऑफ सीरीज फ्रॉम फर्स्ट लास्ट इज रिजल्ट। तो आप देखेंगे 1 से लेके 4 तक हमने वैल्यू दी थी, लास्ट की वैल्यू यहाँ पे 4 इज 10। सो दिस इज द बेसिक रिकर्सिव प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो भाई दो चीज का ध्यान रखें, पहला बेस केस, अगर आपका बेस केस नहीं है प्रोग्राम में तो वो एक इनफाइनाइट प्रोग्राम बन जाएगा। दूसरा, अपने प्रोग्राम को रिकर्सिव केस दीजिए, यानी कि ऐसा कोड जो बार बार रिपीट होगा। तो कोड को आप देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे नम प्लस कंप्यूट ऑफ नम माइनस 1। तो बार बार ये फंक्शन खुद को ही एग्जीक्यूट करेगा, कब तक करेगा, जब तक कि बेस केस नहीं होता। तो सिंपल है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ द फैक्टोरियल। तो वही फैक्टोरियल में रिकर्सिव कोड करने से पहले आपने इटरेटिव कोड सभी को आता है, क्लास 11th में हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ नम, फैक्ट इज इक्वल टू नम फॉर आई इन रेंज 1 to नम, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम था जो हम फैक्टोरियल का नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो लेट अस सी हियर, अब रिकर्शन में हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। डेफ फैक्टोरियल ऑफ नम, इफ नम इज लेस देन 2, आपको पता है कि 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न 1। तो 2 से कम है तो आपको पता ही है कि कंडीशन का आंसर क्या आएगा 1। अब बाकी के लिए क्या होगा, एल्स रिटर्न नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, यानी कि बार बार उस फंक्शन को कॉल करते रहिए और नम की वैल्यू 1 से कम करते दीजिए। तो सिंपल है, यहाँ पे इनपुट करवाया नंबर ग्रेटर देन 0, हमने यहाँ पे इनपुट करवाया 5, तो रिजल्ट इज फैक्टोरियल ऑफ नम। तो नम की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली 5, तो रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 5, तो ये कॉल हो गया, यहाँ पे वैल्यू ली 5 और ये अगली बार चलेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4। नेक्स्ट टाइम 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ
यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया तो 4 था, नेक्स्ट टाइम फैक्टोरियल ऑफ 3, देन फैक्टोरियल ऑफ 2, देन फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए आप देखेंगे कंडीशन हमारा यहाँ पे आ गया 1, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा लास्ट में मल्टीप्लाई होके रिजल्ट में हमारा आंसर स्टोर होगा और प्रिंट रिजल्ट, तो दैट्स द आउटपुट। तो रिवर्स ऑर्डर में आपका आंसर एज अ स्टैक स्टोर होता है और आंसर आपका आता है। नेक्स्ट प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म। सिंपल है भैया, फिबोनाची के आपको पता है कि फर्स्ट टर्म फिबोनाची की 0 और सेकंड टर्म फिबोनाची की 1, तो ये दो तो फिक्स ही हैं, ये दो फिक्स हैं, तो इसका मतलब प्रोग्राम के अंदर बेस केस कितने हो गए आपके, 2 आपके बेस केस यहाँ पे हमने रख लिए हैं। और अगर आपका पहला वैल्यू फिक्स हो गया, दूसरा वैल्यू फिक्स हो गया, तो आपको एक n-1 करनी है वैल्यू अपनी और दूसरी वैल्यू n-2 करनी है। तो फिबोनाची डेफ फिबोनाची ऑफ n, अगर n आपका 1 है यानी नंबर आपका जो है वो 1 है तो रिटर्न 0 करवाइए, नहीं तो अगर 2 है तो रिटर्न करवाइए 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है और सेकंड टर्म आपकी 1 है, इसलिए रिटर्न 0 और रिटर्न 1। नहीं तो क्या रिटर्न करवाइए, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करवाइए n-1 करके और n-2 करके, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो एक नंबर टर्म्स कितने टर्म्स चाहिए वो इनपुट करवाते हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नम्स ऑफ टर्म रिक्वायर्ड फॉर आई इन रेंज 1, n+1, तो इट विल जनरेट अ लिस्ट विद वैल्यूज 1 to n। प्रिंट फिबोनाची ऑफ i जो हमारा नंबर होगा यहाँ पे n, यहाँ मैंने सेपरेट ले लिया ताकि मेरी आउटपुट जो आए उसके साथ में कॉमा लगा हो, और लास्ट में मैंने ये आपका ऑप्शनल है मैंने यहाँ पे दे दिया है प्रिंट डॉट डॉट, ये लास्ट में आउटपुट में मेरे पास यहाँ पे डॉट आ जाए। ठीक है, तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिकर्सिव कोड आपका क्या होना चाहिए, बेस के आ गया रिकर्सिव कोड आ गया और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम का आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो मैंने 8 टर्म्स ली थी यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं टोटल टर्म्स यहाँ पे 8 आ चुकी हैं। Next is to calculate the GCD of two numbers, greatest common divisor of two numbers। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो तकरीबन 2000 साल पुरानी एक एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, उसके थ्रू जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो रिकर्शन के थ्रू ही किया जाता है। अब हमें GCD कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का, A और B का। तो हमने लिया अगर b आपका 0 है तो रिटर्न a पहला नंबर, नहीं तो क्या रिटर्न करवाइए, फिर से रिटर्न GCD सेकंड नंबर, देन फर्स्ट नंबर मॉड सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, बिकॉज मॉड गिव अस द रिमाइंडर, तो वो रिटर्न करवा दीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, दो नंबर्स ले लिया आपने और उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं n1, n2, और ये n1 और n2 a और b में जाके स्टोर हो रहे हैं आपका, जैसे फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 6, तो GCD आ गया भाई 4 और 6 का जो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज द 2। तो ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू जो किया है दैट इज द रिकर्शन। नाउ very important, binary search। This popular search technique searches the given item in minimum possible comparison। ये एक ऐसी सर्च टेक्निक है, वो आपको कोई भी नंबर, कोई भी आइटम हम कह सकते हैं, अगर आपको वो ढूंढनी है तो वो कम से कम कंपैरिजन में आपको ढूंढ के देगा किसी एरे में। इट रिक्वायर्स द एरे, तो इसके लिए आपको एक एरे चाहिए टू बी स्कैन, जिसको हम ढूंढेंगे, मस्ट बी सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर। लेकिन एरे में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। इन बाइनरी सर्च द आइटम इज सर्च्ड फॉर इन स्मॉलर सेगमेंट्स। अब बाइनरी सर्च एक लीनियर सर्च है, लीनियर में नॉर्मली क्या करेंगे, पहले से शुरू हो जाएंगे और आखिरी तक हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाएंगे, तो वो एक लंबी टेक्निक है। अब बाइनरी सर्च क्या करेगा, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपको ढूंढना है, सपोज वो एलिमेंट आपका आइटम है, हम उसको छोटे सेगमेंट में ढूंढेंगे, नियरली
हाफ द प्रीवियस सेगमेंट आफ्टर एवरी स्टेज। पहली स्टेज में हम एक एरे है उसका हाफ करेंगे, ठीक है, तो हर एक कंपैरिजन के अंदर उसका हाफ होता जाएगा आगे। जैसे टू सर्च द आइटम इन एरे, द आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट। अब हमें जो एलिमेंट ढूंढना है हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को, उस आइटम को उस एरे के अंदर जो मिडल एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे तो या तो पहले मिल सकता है या बाद में मिल सकता है। देखिए क्या करना है हमें। इफ द आइटम इज मोर देन द मिडल आइटम, अगर जो आपका एलिमेंट है वो उस मिडल एलिमेंट से ज़्यादा है, तब आपका सीधी सी बात है कि आपकी एरे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है। द लेटर पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिकम्स न्यू सेगमेंट टू बी स्कैन। तब आपने दूसरे वाले हिस्से में उसको ढूंढना है, आगे वाले हिस्से में ढूंढना है अगर आपका एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है। इफ द आइटम इज लेस देन द मिडल एलिमेंट, अब आपका एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है, देन फॉर्मर पार्ट ऑफ द सेगमेंट बिकम्स न्यू सेगमेंट टू स्कैन। तब आपका पहले वाला एरे का जो पहले वाला हिस्सा है उसमें आपने ढूंढना है और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर न्यू सेगमेंट्स अंटिल आइटम इज फाउंड और नॉट फाउंड। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक कि आपका एलिमेंट जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे बाइनरी सर्च का, ठीक है। उस एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा एलिमेंट है, इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे बाइनरी सर्च। हमारे पास एक एरे है यानी कि लिस्ट है कुछ नंबर्स की। देखिए इसमें कुछ नंबर स्टोर्ड हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे इट इज स्टोर्ड एट पोजीशन 0 एंड द एलिमेंट्स आर 10, 12, 14, 21, 23, 28, 31, 37, 42, 44, 49 एंड 53। अब हमें करना क्या है, टू सर्च 44। अब हमें 44 को ढूंढना है। हमें पता है, दिख रहा है यहाँ पे 44 ये है, लेकिन बाइनरी सर्च कैसे करेगी इसको, कंप्यूटर कैसे करेगा। तो लेट अस स्टार्ट स्टेप नंबर 1। ध्यान से नोट करिएगा इनको, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रोग्राम भी बनाना है आगे। नेक्स्ट इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे तो आपने किस किस एलिमेंट का क्या नाम रखा उसका ध्यान रखना। बिगनिंग इज इक्वल टू 0, हम सीधा पता है कि बिगनिंग एलिमेंट कौन सा इंडेक्स है, 0 है। लास्ट इज इक्वल टू 11, तो देखिए बिगनिंग हमारा 0 और लास्ट हमारा क्या है 11 है। नेक्स्ट फाइंड द मिड, तो आपने मैथ्स में किया हुआ है, मिड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब देखिए करते हैं क्या आया 5.5। अब भैया 5.5 कैसे लेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे इंट फंक्शन को यूज किया है। तो इंट फंक्शन 5.5 ऑफ इंट दैट इज 5। तो देखिए 5th पोजीशन पे आपका 5th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 5th इंडेक्स पे आ गया आपका 28। तो 28 हो गया आपका मिड। अब इस मिड के साथ आपने कंपैरिजन करना है कि जो मेरे को एलिमेंट ढूंढना है, आइटम ढूंढना है, वो फॉर्मर पार्ट में है या लेटर पार्ट में है। स्टेप नंबर 2, डाटा एट मिड, यानी कि डाटा एट 5 इज 28। 28 इज लेस देन 44। हमें जो ढूंढना है वो 44 है। अब हमारा मिड जो है वो क्या है, छोटा है। देन बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ पे ये इस चीज को ध्यान दीजिए, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि बिगनिंग जो है अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसके आगे से करेंगे। तो बिगनिंग कितना हो जाएगा हमारा 5 + 1 6। अब बिगनिंग हमारी जो नई बिगनिंग होगी वो 6 से होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए नई बिगनिंग 6 हो गई है। अब फिर से मिड निकालते हैं, बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 6 + 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। तो अब देखते हैं डाटा एट 8 पे क्या है, दैट इज 42। यहाँ देखिए कि 42 है। अब 42 को फिर से कंपेयर करते हैं अपने जो सर्च करना एलिमेंट, 42 इज लेस देन 44, भाई अभी भी इसके छोटा है। देन बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, बिगनिंग की पोजीशन फिर से एक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिगनिंग कितना हो जाएगा 8 + 1 दैट इज द 9। तो बिगनिंग देखिए 9 हो गया हमारा। यहाँ पे फिर से मिड निकालिए, मिड इस केस में 9 + 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 10। अब देखिए डाटा एट 10 व्हाट इज इट, दैट इज 49।
हमारा क्या है 49। अब आप यहाँ पे देखिए 49 पे पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। तो 49 इज ग्रेटर देन 44, इसका मतलब हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो जो लास्ट है आपका मिड में से एक माइनस करिए, तो लास्ट आ गया आपका 10 माइनस 1 दैट इज 9। अब फिर से मिड निकालते हैं, बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। बिगनिंग आपका देखिए कहाँ पे है, बिगनिंग 9, लास्ट कहाँ पे है, वो भी 9 है। तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9, यानी कि बिगनिंग लास्ट दोनों एक ही जगह पे हैं, इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर। और अब हम देखते हैं कि डाटा एट 9, हमारा डाटा एट 9 क्या है, दैट इज 44, यानी कि 44 को ही हम ढूंढ रहे थे और 44 हमें मिल गया। तो सर्च सक्सेसफुल एट लोकेशन नंबर 10। तो इंडेक्स आप देखेंगे, इंडेक्स इज 9, और अब लोकेशन अगर हम काउंट करेंगे तो आपको पता है कि लोकेशन हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स आपका आया 9 और लोकेशन आपका आया 10। So this technique is very helpful to search an element in an array in minimum possible combinations. अभी हमने एक एग्जांपल देखी बाइनरी सर्च की। So let us do a practical approach for binary search. Let us create a function bin search, and the arguments are array, item that is the element you have to find out, lowest value, and high. If low is greater than high, अगर आपका लो जो है वो हाई से ज़्यादा है तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा यहीं पे, रिटर्न -1, दिस इज द फर्स्ट बेस केस। देन फाइंड आउट द वेट, mid is equal to int low plus high डिवाइड बाय 2, तो mid आ जाएगा हमारा। अब पहली कंडीशन लगाते हैं, इफ आइटम डबल इक्वल टू एरे का मिड। तो अगर आइटम हमारी एरे के मिड के इक्वल है तो मिड हमारा रिटर्न होगा, दिस इज द सेकेंड बेस केस। सेकेंड कंडीशन, एल इफ आइटम इज लेस देन एरे ऑफ मिड। अगर हमारी एलिमेंट जो है वो एरे के मिड से कम है तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें सेगमेंट के पहले वाले हिस्से में फाइंड आउट करना है। तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 और रिटर्न bin search array item low high. This is the recursive case of our program. हमें क्या करते जाना है, बार बार ये कंडीशन रिपीट करवानी है, तो दिस इज द रिकर्सिव केस। एल्स नहीं तो क्या होगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और पहली कंडीशन के लिए हमारा रिकर्सिव केस ये है। और अगर हमारा लो जो है वो क्या है, अगर दूसरे हाफ में हमें मिलता है, ठीक है, तो मिड प्लस 1 हो जाएगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, रिटर्न सेम आपका रिकर्सिव फंक्शन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसके अंदर दो बेस केस हैं, पहला लो ग्रेटर देन हाई और दूसरा है अगर आइटम आपका एरे का मिड है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपके बेस केस हैं। अब अगर आपका आइटम या जो एलिमेंट आपको ढूंढना है वो एरे के मिड एलिमेंट से छोटा है तो आपका सर्च जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फर्स्ट हाफ तक, और आप उसी हाफ में बार बार ये मिड निकालते जाएंगे। अब अगर आपका एलिमेंट बड़ा है तो मिड से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, सेगमेंट के दूसरे वाले हिस्से में लेटर हाफ में आप सर्च करेंगे और लो की वैल्यू जो है आपकी मिड प्लस 1 हो जाएगी। तो दो बेस केस, दो रिकर्सिव केस, सिंपल। अब मान लीजिए वही एरे हमने ले ली, यहाँ पे आइटम इनपुट द सर्च एलिमेंट, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पैरामीटर जो है पास कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपने कि जब मैं एलिमेंट यहाँ पे पास कर रहा हूँ, एरे पास कर रहा हूँ, AR दैट इज द कंप्लीट एरे, आइटम जो मेरे को एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। अब 0 आपको पता है कि लो की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे वो फिक्स है हमेशा, लो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इंडेक्स इज ऑलवेज 0, इट स्टार्ट्स विद द 0।
देन हाई। अब हाई आपका पता नहीं है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है लेंथ, len फंक्शन। इट विल गिव मी द लेंथ ऑफ द एरे -1, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ये 0 से। क्लियर? तो आपके पास लो की जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी दैट इज द 0, एंड हाई की जो वैल्यू आपको रिसीव होगी दैट इज द लेंथ ऑफ एरे -1। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो 0 है या 0 के इक्वल है, तो आप लिख देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और किस लोकेशन पे आया आपने, ठीक है, तो आप बता देंगे उसकी लोकेशन। और मैंने यहाँ पे दे दिया है रिजल्ट +1, क्योंकि पहला ये तो सिर्फ मुझे इंडेक्स बताएगा और ये मुझे उसकी लोकेशन बताएगा या पोजीशन बताएगा। एल्स प्रिंट सॉरी आइटम नॉट फाउंड इन द एरे। तो वही किया हमने यहाँ पे, 44 को सर्च किया तो 44 आपका क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 9 लोकेशन नंबर 10 पे मिल जाएगा। ठीक है, सो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनरी सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम आप बना के देख लें और प्रैक्टिस करें इस प्रोग्राम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। द लास्ट टॉपिक दैट इज द इटरेशन वर्सेस रिकर्शन। अब इटरेशन क्लास 11th के अंदर आपने लूप्स के अंदर लूप्स का टॉपिक पढ़ा है और उसी को इटरेशन कहा जाता है। तो रिकर्शन और इसमें क्या कंपैरिजन है, हमने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट एक प्रिपेयर किया हुआ है, इस साइड हमने रखा है क्राइटेरिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड के अकॉर्डिंग देखें तो इटरेशन जो है उसमें लूप्स का यूज़ होता है, और रिकर्शन के अंदर आपको पता है कि एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अगर हम बात करें स्टेट की तो इसके अंदर क्या होता है, डिफाइंड बाय कंट्रोल वेरिएबल्स वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कंट्रोल के थ्रू चलती है। और इसके अंदर डिफाइंड बाय द पैरामीटर वैल्यू स्टोर्ड इन द स्टैक। तो जो स्टैक के अंदर पैरामीटर वैल्यूज आपने स्टोर करके रखी है उसके अकॉर्डिंग चलता है। प्रोग्रेशन कैसे आगे एग्जीक्यूट करेगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द वैल्यू इन द कंडीशन। तो जैसे जैसे अभी कंडीशन है वैसे वैसे ये आपका चलता रहेगा आगे इटरेशन। रिकर्शन क्या करेगा, फंक्शन स्टेट कन्वर्जेस टुवर्ड्स द बेस केस। तो ये बेस केस की तरफ चलेगा, जैसे ही बेस केस मिलेगा इसको ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इटरेशन के अंदर द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल मूव्स टुवर्ड्स द वैल्यू इन कंडीशन। जैसे ही टेस्ट कंडीशन फाइंड करेगा और रिकर्शन में बेस केस फाइंड करेगा। तो बेस केस मिलने पर या टेस्ट केस आपका होने पर तो क्या होगा, कैसे टर्मिनेट होगा, अगर आपका लूप का एंड होगा, लूप एंड्स व्हेन कंट्रोल वेरिएबल्स वैल्यू सेटिस्फाइज द कंडीशन। जब आपका लूप कब होगा, जब आपका कंट्रोल का वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन रिकर्शन के लिए टर्मिनेट तभी होगा जब आपके पास बेस केस है, नहीं तो इट विल रिजल्ट इन ए मेमोरी एरर। इटरेटिव कोड टेंड्स टू बी बिगर इन साइज। जो इटरेशन के कोड हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि रिकर्शन क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को छोटे से छोटे साइज में कन्वर्ट कर देगा। रिकर्शन डिक्रीजेस द साइज ऑफ कोड। इन्फानाइट लूप यूजेस सीपीयू साइकिल्स। अगर आपका लूप खत्म नहीं होता तो वो सीपीयू के रिसोर्सेज को क्या कर देगा, यूज करेगा। जबकि इन्फानाइट रिकर्शन क्या करेगा, इसमें स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन होगा और आपके सिस्टम को क्रैश भी ये कर सकता है। एग्जीक्यूशन के तौर पे देखें इटरेटिव केस को, एग्जीक्यूशन इज फास्टर, ठीक है, और रिकर्शन के तौर पे देखें तो एग्जीक्यूशन इज समवट स्लोअर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। इटरेशन और रिकर्शन में क्या कंपैरिजन चार्ट बनाइए, तो कम से कम 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, 2 इस साइड के 2 इस साइड के, टोटल 4 आपको लिखने हैं। ठीक है, कोई से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट इज अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन टू कैलकुलेट द पावर, फॉर एग्जांपल a raised to power b। तो आपको एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर कि हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं a raised to power b। नेक्स्ट, a recursive code to compute and print sum of squares of n natural numbers। अभी हमने पिछले देखा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ n natural numbers। अब यहाँ क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n numbers, वैल्यू ऑफ n इज पास्ड एज अ पैरामीटर। तो सेम रहेगा यहाँ पे, सिर्फ आपका मैं हिंट देता हूँ, रिकर्सिव केस में थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, बाकी प्रोग्राम सेम है।
थर्ड प्रोग्राम, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग रिकर्सिव कोड ऑफ फैक्टोरियल। अभी आपने पीछे फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया तो आपको देखना है कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा एरर है और उस एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिकर्सिव कोड टू प्रिंट अ स्ट्रिंग बैकवर्ड्स। अब आपको एक रिकर्सिव कोड करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, ठीक है। जैसे आप न्यूज़ एक स्ट्रिंग है तो उसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है। और जैसे मान लिया आपका ही नाम है, उसको आप उल्टे साइड से लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये बनाने हैं। तो इसमें थोड़ा सा हिंट यहाँ पे ये भी है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लीजिए और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और लेंथ को एक एक करके माइनस करते जाइए, वो इसका रिकर्सिव कोड बन जाएगा। तो इसको करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। What are the base case and recursive case? What are their roles in a recursive program? ये बेस केस और रिकर्सिव केस क्या है और इनका रिकर्सिव प्रोग्राम के अंदर क्या रोल है। तो जब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, तो रिकर्शन का टॉपिक आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक फंक्शंस। तो फंक्शंस का भी आप देख रहे हैं और बोर्ड ऑफ व्यू से रिकर्शन का प्रोग्राम भी प्रोग्राम में आता है, ठीक है, बोर्ड में आता है प्रोग्राम। तो आप इसको प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, और डाउट्स अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे को कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।